Good morning, students. Welcome to the class. In English Reader, as our chapter is going on, chapter number 3, Tine, the and the Faraway Mountain. We have done the hard words of this chapter and we have learned the word meaning also, and we have done in the notebook also the words meaning, and we have read the chapter also. Today we are going to sum up this chapter. After that we have to do the question answer. Okay. So now I am presenting the summary of this chapter. Yes, the name of the chapter is Tine and the Faraway Mountain. And who is the writer of this chapter? The writer of this chapter is Shikha Tripathi. She is a travel writer. She just meets two different type of travelers who just do the adventure, and she meet them and just exchange the experience. After that she writes. She is a travel writer and her name is Shikha Tripathi. Now we are going to start the chapter. That as the name is there, Tine and the Faraway Mountain. Tine here is a name of a young girl. One young girl is there. Her name is Tine Meena. Her name is Tine Meena. Where she lived? She was living in Arunachal Pradesh. Where? At Arunachal Pradesh, there is a place, Ikali, where in Mishmi Hills. In Mishmi Hills. This story is based on this young girl, Tine Meena. This girl, she just always watch the mountains. She loved to watch the mountains. She always think, how far is it? Why should I am not there? This type of thinking she always think. Okay, and wherever she is moving in the forest, she is sitting or just taking rest in the sun. That time also she just think and just see always the mountains. She loves to see the mountains, to watch the mountains. And one voice also, she just heard a magical voice. She just think that there is a voice coming through the mountain, and the voice, which voice coming? Whoosh hoo, whoosh hoo. This type of voice she always listened that mountains are calling her. Mountains are calling her by which voice? Whoosh hoo, whoosh hoo. And she just love it, and she just find it wondrous. She always find wonders to watch the mountains. Okay, understand? But soon her family shifted to Roing, a city near Ikeli. Near Ikeli there was a city, a town, the name was Roing. Her family shifted here, and now she was away with this forest, mountains, with this nature, with the nature. So she was not so much happy. Which place? When she shifted to the Roing. Okay? जब वो रोइंग शिफ्ट हुई तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसको इक्केली में रहना पसंद था. वहाँ से उसको माउंटेन्स दिखते थे, उनको माउंटेन को देखना, उनको वॉच करना, उनकी जो आवाज़ आती थी वूश हूँ, उससे वो बहुत ज़्यादा वंडरस लगती थी, वंडरफुल लगती थी. नाउ शी हैज स्टार्टेड हर स्कूलिंग इन द रोइंग. अब वो स्कूल कहाँ जाने लगी? रोइंग में. बट शी डजंट लव, बिकॉज शी वॉज जस्ट feeling that I am just far away from the mountains now. But as soon as she completed her schooling, जैसे ही उसने अपनी schooling complete करी, she took the admission. She just filled the form as a porter for the army person. As a porter. And porter means, I told you, what is the meaning of porter? Porter means who just carry the luggage. For the army camp, she just joined as a porter for the army expedition in mountains.
The army expedition were going on for the mountains and she filled the form and took the admission as a porter in the army expedition. उसने आर्मी एक्सपीडिशन में एज ए पोर्टर की जॉब करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया. बट दैट टाइम it was banned for the female to do a job as a porter. But उस टाइम एक फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए, वीमेन के लिए पॉटर का काम करना क्या था? बैन था. फीमेल्स वर नॉट अलाउड एज अ पॉटर. बट देन ऑल्सो टीनेजर्स डिस्गाइज सेल्फ लाइक अ बॉय. उसने वेश बदला, वो बॉयज़ की तरह रहने लगी ताकि कोई उसको पहचान ना पाए कि ये गर्ल है, और वो पॉटर का काम करने लगी. एंड इन अ सिंगल डे, इन अ वन जर्नी, शी वॉज टेकिंग और शी वॉज कैरिंग 25 किलोग्राम लगेज. वो एक बार में 25 किलो लगेज लेकर क्या करती थी? आर्मी पर्सन के साथ एक्सपीडिशन करती थी. ओके, मीन्स माउंटेन पर जाती थी. बट इन अ वीक everyone just came to know that she is a female, she is a girl. लेकिन एक 1 वीक के अंदर अंदर सभी को मालूम पड़ गया कि ये गर्ल है. द ऑफिसर स्कॉल्डेड हर. ऑफिसर ने उसको डांटा. बट उनको पता था जितना अच्छे से रूट टीने जानती है इस माउंटेन का, उतने अच्छे से तो हम भी नहीं जानते हैं. इसलिए उन्होंने उसको एज ए पॉटर की जॉब से नहीं निकाला. और ये एक शुरुआत थी फीमेल के पॉटर बनने की. ओके, अंडरस्टैंड. इस पर से बैन किस तरह से हटा? विद द हेल्प ऑफ टीने. धीरे धीरे क्या हुआ? वो अपने वर्क में बहुत ही ज़्यादा कैसी थी? डिटरमाइंड थी. अपना काम बहुत अच्छे से करती थी और बहुत ही जल्द वो क्या बन गई? कोऑर्डिनेटर. वो क्या बन गई? कोऑर्डिनेटर. अब वो प्लान करने लगी ट्रिप्स, माउंटेन के लिए ट्रिप्स वो अब प्लान करने लग गई. और धीरे धीरे क्या हुआ? वो एवरीथिंग शी जस्ट नो, अब उसे सब मालूम पड़ गया. और वो जो आवाज़ थी वूश हू, वो तो उसको हमेशा ही आवाज़ आती थी माउंटेन से. उसे हमेशा क्या लगता था? डैट द माउंटेन इज कॉलिंग हर, कि माउंटेन उसको बुला रहा है. इसी तरह उसका जो एज अ कोऑर्डिनेटर शी वॉज डूइंग द जॉब. बट एट वंस, बट एट वंस शी मीट टू द डॉक्टर मेटी. डॉक्टर METEI, डॉक्टर मेटी, who just arrange the sports and adventures. डॉक्टर मेटी से वो एक बार मिली तो डॉक्टर मेटी ने जब उसको देखा टीने को तो वो समझ गए शी हैज़ अ गुड स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. ये चाहे तो ये माउंट क्लाइंबिंग ही कर सकती है. शी कैन. बट व्हाट इज़ देयर डेफिशिएंसी? कमी क्या थी? डॉक्टर मेटी मिले उससे और उसको बताया यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो, तुम्हें सिर्फ टेक्निक सिखाने की ज़रूरत है और तुम ये सब कुछ कर सकती हो. अभी तक वो पॉटर बन चुकी है, कोऑर्डिनेटर बन चुकी है, और बट अभी तक उसको ये नहीं पता कि वो जो बहुत दूर जो माउंटेन है जिसके लिए उसे लगता है कि वो उसको बुला रहा है, आवाज़ लगा रहा है, वूशू वूशू, उस माउंटेन का नाम क्या है? उस माउंटेन का नाम उसे कब मालूम पड़ा? जब उसने एक मूवी देखी. द नेम ऑफ द फिल्म वॉज द रेस फॉर एवरेस्ट. द रेस फॉर एवरेस्ट. ये जो फिल्म थी इट वॉज बेस्ड ऑन द रेसर्स हु क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट. व्हेन शी वॉच दिस मूवी, जब उसने ये मूवी देखी उसके बाद उसे पता लगा दैट माउंटेन विच कॉल्स हर, दैट इज द माउंट एवरेस्ट. एंड नाउ शी डिसाइडेड, मुझे तो उस एवरेस्ट पे जाना है. आई हैव टू गो, आई हैव टू सबमिट द माउंटेन. सो शी जस्ट ज्वाइन एंड डॉक्टर मेटी बिकेम हर मेंटर एंड ही हेल्प्ड हर. डॉक्टर मेटी ने उनकी बहुत हेल्प करी. नाउ देयर वाज द कैंप्स. जो जाते हैं ये लोग, इनके 4 वो बना दिए गए कैंप्स. 4 कंपेनियन वर देयर. द कंपेनियन ऑफ टीने वॉज चेरिंग शेरपा. चेरिंग शेरपा. He was the companion of टीने. अब 4 कैंप्स थे. पहले इनको सबसे नीचे वाले फर्स्ट कैंप में रुकना पड़ता था. दे स्टे देयर दैट दे कैन बी अकस्टम्ड और वी कैन से familiar टू द माउंटेन हार्श वेदर. माउंटेन के हार्श वेदर से फैमिलियर होने के लिए फर्स्ट कैंप में रुके.
After then just moved to the second camp, and as soon as they reached to the third camp and fourth camp, what happened? जब ये थर्ड कैंप में पहुँचे 2 कैंप्स क्लियर करके, what? वेदर वॉज सो हार्श, वेदर बहुत हार्श हो गया था. देयर वॉज अ स्टॉर्म ऑल्सो, और वो स्टॉर्म ऐसा आया कि पूरा टेंट, वॉट द सप्लाईज वर देयर, वहाँ पे जो सप्लाईज थी, सप्लाईज मीन्स टेंट फॉर स्लीपिंग, फॉर ईटिंग फूड, वहाँ जो भी सप्लाईज थी वो भी स्टॉर्म के साथ सब उड़ गई. एंड लास्ट शी जस्ट बोरो अ टेंट एंड शी स्लेप्ट देयर. आफ्टर शी स्लेप्ट एट मॉर्निंग, शेरपा सेड, मॉर्निंग में शेरपा ने बोला मौसम बहुत ख़राब है, क्या हमें आगे चलना चाहिए या वापस चलें? बट शी सेड नो, आई विल गो, मुझे तो जाना है. फ्रॉम माई चाइल्डहुड दैट माउंटेन इज़ कॉलिंग मी, वो माउंटेन तो मुझे मेरे बचपन से बुला रहा है, मुझे तो उसके पास जाना है. और उसकी आवाज़ तो अब और तेज हो गई है. शी वॉज हरिंग अ लाउडली वॉइस नाउ, वूशू वूशू, and she was thinking that this mountain is calling me. At last when everything was go away, जब सब कुछ चला गया था, उड़ गया था with the storm, इनके पास बचा था 1. टीने has only 1 packet of noodle, उसके पास 1 पैकेट नूडल का बचा था. ओके, then शेरपा said that we just share half half, कि हम दोनों हाफ हाफ शेयर कर लेते हैं. That time टीने smiled, टीने ने स्माइल करके क्या बोला? If we come back alive, अगर हम माउंटेन पे पहुंच जाएंगे और वहाँ से वापस जिंदा आ जाएंगे, तब इस आधे बचे हुए नूडल्स को खाएंगे. इसे हम क्या बोलेंगे? द डिटर्मिनेशन ऑफ दैट गर्ल. उस गर्ल का डिटर्मिनेशन आप देखिए, निश्चय कि उसे था कि मुझे उसको सबमिट करना है, मुझे माउंटेन पे जाना है. नाउ दे आर जस्ट मूविंग टू द माउंटेन अपसाइड, वो ऊपर क्लाइम कर रहे थे, बट दे वर रीलिंग डाउन, वो बार बार नीचे आ रहे थे. क्यों? क्योंकि हवा जो थी, जो स्टॉर्म था वो बहुत तेज़ था. एंड रीलिंग आउट मीन्स 2 कदम आगे करना, तो हवा उनको 3 कदम पीछे करती थी. बट दे हैव द डिटर्मिनेशन, लेकिन वो फिर भी चलती गई और ऊपर चढ़ती गई. एंड एट लास्ट, और लास्ट कब? एट 9 May 2011. And what was the time? 10:45 AM. Teenage this girl summited the Mount Everest. आखिर में 9 May 2011 10:45 मॉर्निंग में उसने क्या कर लिया? समिट. समिट मीन्स शी क्लाइंब्ड अप द माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड. एंड शी बिकेम द फर्स्ट लेडी और फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट फीमेल from north east, from north east. नॉर्थ ईस्ट से वो पहली महिला बनी जिसने कि माउंट एवरेस्ट को क्या करा? सबमिट करा, क्लाइम किया, या कहें फतेह किया. अंडरस्टैंड दिस चैप्टर? व्हाट वी जस्ट लर्न बाय दिस चैप्टर? वी जस्ट लर्न, अगर हम कुछ काम करने का पक्का डिसीजन ले लेंगे, डिटरमाइंड हो जाएंगे किसी चीज़ के लिए, तो वो हम काम कर सकते हैं. बस हमें क्या चाहिए? द फुल एफर्ट्स, हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी विद ऑनेस्टी, ईमानदारी से. अगर हम पूरी मेहनत से किसी चीज़ को करने की कोशिश करेंगे तो वो हमको ज़रूर मिलेगी. जैसे कि किसको मिली? टीने मीना. फाइनली शी वॉज ऑन द टॉप पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट विद द फ्लैग ऑफ इंडिया. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर. थैंक यू.